So, good evening friends, my dear students. Today topic I am going to cover is the type of accounts. तो देखिए मैंने पहले क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड अदर थिंग. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ अकाउंटिंग. सो व्हाट इज टाइप ऑफ अकाउंटिंग? So, or type of account, sorry, this is not accounting, type of accounts. So different type of accounts. So accounts generally दो तरह से डिवाइड है. एक है पर्सनल अकाउंट, सॉरी तीन तरह से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. सो तीन तरह के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड nominal. So personal accounts is generally classified into three category: natural person, artificial person and representative. So real account is personal account is classified into three types: natural person, artificial person and your representative. And real account is further classified into tangible asset and intangible, sorry, tangible and intangible. And nominal account. So तीन तरह से अकाउंट हैं, अकाउंट जो है ए, बी एंड सी. सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड nominal account. So account is divided into three parts: real, personal, real and nominal. Personal account is further classified into natural person, artificial person and representative, and real is classified into tangible and intangible, and nominal is nominal account. So personal account मतलब हो गया, as the name suggests, these are the accounts related to person. Accounts related to person is known as personal account. Those person could be natural person like Ram, Hari, Gopal और रानी सीता हरी. नाम कहाँ से लगा? विवेक अकाउंट, राम अकाउंट, हरी अकाउंट, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, फिर ऑल दीज आर कॉल्ड यार पर्सनल अकाउंट. नेम जो पर्सन का ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. रिलेटेड टू पर्सन, accounts related to person is known as personal account. So this is what call your natural person. Then artificial person. Artificial मतलब just like human being, company is also person. It is created by the law. That is called artificial persons. So just like companies, body corporate or association of persons or partnership for are known as artificial persons, which is created by the law or statute. So according to this, maybe Infosys Limited or Charitable Trust or ABC Bank, Reliance RIL, Reliance Industry Limited, Facebook क्या है? कंपनी है. Amazon क्या है? कंपनीज है. So these are called your artificial persons, means which is created by the law. So personal account is divided into two parts: personal, natural person, then artificial person. Person में होगा राम, हरि, गोपाल, all this name, and artificial में हो गया आपका जैसे Infosys Limited account, Charitable Trust account, all this. Then real account. Real account means related to assets or property or possessions. It is related to asset or related to property, depend on the physical existence or otherwise, further classified into tangible and intangible. So real account is classified into two types: first tangible and intangible. जैसे हो गया asset. Asset those are physical existence, जैसे आपको उसको देख सकते हैं एंड छू सकते हैं, see and touch, which can be seen and touch, that is called your tangible asset. और tangible real account, tangible real account जैसे हो गया machinery account, stock account, cash account, vehicle accounts. These are what called your real tangible account. Then intangible real account, intangible real account, tangible real account, then intangible real account. क्या होता है? Intangible real account are those represent possession of property. Those have no physical existence. It has no physical existence but can be measured in terms of money or value
जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेंजिबल, दीज आर व्हाट कॉल्ड इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट दीज आर द इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और हम लोग जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, और जो टेंजिबल एसेट है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, जो इंटेंजिबल एसेट है उसको बोलते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। देन लास्ट इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस, रेंट, ट्रैवलिंग, कमीशंस, लॉस बाय फायर, ऑल दीज आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है उसको बोलते हैं रियल नॉमिनल अकाउंट, जो भी खर्चा होता है। So the concept of next is debit and credit. What is debit and what is credit? जिंदगी डेबिट क्रेडिट में बीत जाता है एक कॉमर्स स्टूडेंट्स का। So what is debit and credit? जनरली अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग जो सिस्टम से बेस्ड है। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग और डेबिट एंड क्रेडिट एब्रीविएशन हम लोग जैसे डेबिट को बोलते हैं डीआर और क्रेडिट को लिखते हैं सीआर, are represented made of account ledger recorded changes in the value due to business transaction। जब एक ट्रांजेक्शन होता रहता है उसका वैल्यू चेंज होता रहता है कोई भी अकाउंट्स का। सो डेबिट इज इन लैटिन वर्ड, इट मीन्स डेबिटम, DBITUM, डेबिटम। डेबिट मतलब होगा डेबिटम, उसका मतलब व्हाट यू विल रिसीव, फोकस ऑन रिसीव, कितना मिलेगा इस डेबिटम। एंड देना है वो हो गया क्रेडर, CREDRE, इसका मतलब हो गया देना, टू पे। सो दिस इज अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, कोई डी फॉर्म अकाउंट में हो गया। दिस इज व्हाट योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। लेफ्ट साइड हो गया आपका क्या, राइट साइड हो गया आपका डेबिट, लेफ्ट साइड हो गया क्रेडिट। दी प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस। सो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसका दो है, एक मॉडर्न अप्रोच एंड वन इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो दो तरह से हम लोग अकाउंट्स को बना सकते हैं, एक हो गया मॉडर्न अप्रोच एंड दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रांजिशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं और ट्रेडिशनल को ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है। सो व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच? देखिए हम लोग मेरे पहले क्लास में आप देखे हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट का मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। सो पहले अगर जो देख लिया है तो बढ़िया बात है, जो नहीं देखे तो पहले वीडियो को देख लीजिए। सो अगर आप नहीं समझेंगे तो आप समझना आपको मुश्किल होगा। सो अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड स्टॉक। सो एसेट क्या, any increase in asset will be debited and decrease in asset will be credited. Similarly liability क्या होता है, decrease in the liability will be debited and increase in liability will be credited. Capital, decrease in capital will be debited and increase in capital will be your credited. Then income, decrease will be debited and increase will be credited. Expenses, increase will be debited and decrease of expenses will be credited. Stock, increase will be debited and decrease will be your credited. मतलब देखिए एसेट एंड लायबिलिटी वो इनवर्स होता है, एसेट इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी योर क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, रिवर्स होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी योर credited and decrease your liability will be debited. और कैपिटल क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है,
सो कैपिटल जो होगा लायबिलिटी का सेम होगा, और एसेट एंड योर एक्सपेंसेस वो सेम है। स्टॉक क्या है, स्टॉक आपका और एक्सपेंसेस जो भी है उसका सेम होगा। सो एसेट अगर बढ़ेगा तो आप उसको क्या करना है, डेबिट करना है। एसेट घटेगा तो उसको क्रेडिट करना है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करना है, घटेगा तो डेबिट करना है। सिमिलरली कैपिटल घटेगा तो डेबिट करना है और बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है। इनकम अगर डिक्रीज होगा, घटेगा तो आप डेबिट करना है, और जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। सिमिलरली एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो आपका डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। स्टॉक सिमिलरली इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। सो दिस इज द अमेरिकन अप्रोच, जैसे मैंने टी फॉर्म में बनाया हूँ। प्लीज गो थ्रू। एसेट डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस डेबिट इंक्रीज होगा और क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। इनकम डेबिट होगा अगर डिक्रीज होगा और क्रेडिट होगा अगर डिक्रीज होगा। ये पूरा माइंड में बैठा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ लॉन्ग काम आएगा। सो नेक्स्ट ब्रिटिश अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच और डबल एंट्री और ट्रेडिशनल अप्रोच। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट फॉर रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट व्हाट द लॉसेस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम। सो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है और इसको बहुत अच्छा तरह से आप देखिए और जरूर याद करिए। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का है। सो तीन तरह का हम लोग अकाउंट जो कि देखे थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट द लॉसेस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट योर इनकम एंड गेन। देखिए, इफ यू वांट टू राइट डाउन इट। नेक्स्ट इज, देखिए मैंने आपको बैलेंस शीट बनाया हूँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया। तो प्रॉफिट लॉस देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्या है, रियल अकाउंट। परचेज नॉमिनल अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट। सैलरी नॉमिनल। देखिए जो भी खर्चा है, सैलरी, रेंट, लीगल, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ऑफिस, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस। वो क्या अकाउंट है, देखिए सब नॉमिनल अकाउंट है। और जितना इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन, रेंट, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रियल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये क्या होगा, रियल अकाउंट है। एंड परचेज एंड सेल नॉमिनल अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या है, रियल अकाउंट है। परचेज एंड सेल इज नॉमिनल अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस का बाकी जितना है एक्सपेंसेस वो नॉमिनल अकाउंट। इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो तीन तरह है, इसमें तीन चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। पहला बात है, पहला सिंपल है, ओपनिंग, क्या हो रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, रियल अकाउंट। सेकंड हो गया परचेज और सेल्स, ये हो गया नॉमिनल। और जो भी इन एक्सपेंसेस एंड इनकम वो भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बेसिक
जो है फॉर्मेट मैंने बनाया वो लाइफ लॉन्ग इसको याद कर ली। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो है क्या है ये, रियल एंड पर्सनल अकाउंट। बैलेंस शीट कॉम्बिनेशन किसका है, रियल और पर्सनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। देखिए पहले हम लोग लायबिलिटी साइड में आएंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व, बैंक लोन, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। ऑल दीज आर व्हाट, पर्सनल अकाउंट। सनडेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिविडेंड, बैंक ड्राफ्ट, एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, दीज आर पर्सनल अकाउंट्स। तो जो भी लायबिलिटी है आप देखेंगे ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ऑल दीज आर व्हाट, पर्सनल अकाउंट। अच्छा एसेट साइड में आइए। एसेट साइड में देखिए डेटर्स एंड लोन एडवांसेस। आप कोई डेटर्स मतलब जिससे पैसा आप रिसीव करना है हो गया पर्सनल अकाउंट, एडवांसेस पर्सनल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इज पर्सनल, और बैंक एडवांस इज पर्सनल। और बाकी जितना है एसेट, एसेट क्या है, रियल अकाउंट है। मैंने पढ़ाया था आपको एसेट, गुडविल, पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब क्या है, ये लॉन्ग, ये सब हो गया रियल अकाउंट। देखिए कैश भी है रियल अकाउंट, स्टॉक रियल अकाउंट, मैंने पहले आपको बता दिया था ऑलरेडी। स्टॉक बताया ना, रियल अकाउंट पहले में, रियल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। So these are all about type of accounting. So thank you very much for watching. So ये लाइफ लॉन्ग जो है कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा।